So this lecture is for class 9 already. From physics part, motion chapter has been completed. Equation of uniform and non-uniform are given, and in last video force and its law of motion was started. So already Newton first law and a little bit about second law was given. So according to Newton's second law, force is equal to rate of change of what? Momentum. So the formula is F is equal to mv minus mu by t. mv minus mu by t. mv minus mu means total change of momentum. This is mass, final velocity. This is final momentum. This is initial momentum. So change of momentum in 1 second, that is called rate of change of momentum. Change of momentum in 1 second is called rate of change of momentum, and the unit is what? Newton. And you can say Newton is equal to actually change of momentum is equal to also momentum. The unit of momentum is equal to kg meter per second. Very important. Momentum means what? Mass into velocity. What is the unit of mass? SI unit is kg and standard unit of velocity is meter per second. Velocity का तो मैंने बताया था, शुरू में बताया था मोशन चैप्टर में. So kg meter per second. It means force is equal to rate of change of momentum means kg meter per second square. Why per second square? Because again it is divided by t. It means per second square. So rate of change of momentum is equal to what? Force. अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर देते हैं, फोर्स निकालना है, फोर्स हमेशा याद रखना, हर एक कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट हो, फोर्स के निकालने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जहाँ पे फोर्स लगता है वहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है. सो इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग क्या मिलता था? मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मींस व्हेन फोर्स इज एक्सर्ट वी हैव एक्सेलरेशन. मींस विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल. नाउ using Newton's second law, we can calculate the value of force when force is exerted on a body for a long interval of time. Because time is generally calculated with the help of stopwatch. But now, when impact of force is very small, very important. When impact of force is very small, for example, ball is collide with bed. एक बॉल को मैंने वॉल में फेंका, फिर वहाँ पे कोलिजन होकर वापस रिबाउंड हुआ. कितना टाइम के लिए कोलिजन हुआ हम लोग स्टॉप वॉच से नहीं निकाल सकते. एक्सीडेंट हुआ, एक दो गाड़ी कोलाइड हुआ, कितना टाइम के लिए कोलिजन हुआ, कितना टाइम के लिए फोर्स लगा, हम लोग स्टॉप वॉच से एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते. इट मीन्स व्हेन फोर्स इज एक्सर्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम एक्यूरेटली. थोड़ा टाइम के लिए, छोटा टाइम के लिए अगर फोर्स एक्सर्ट होता है तो टाइम का वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते. रिमेंबर इन दिस फॉर्मूला ना, इस साइड में जो भी टर्म्स है वो मेजरेबल होना है. देन वी गेट जनरली वैल्यू ऑफ फोर्स. मास इज जनरली मेजरेबल. हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी मास कैलकुलेट कर लिया. सो मास कितना भी छोटा हो, इट कैन बी इजीली मेजरेबल. फाइनल वेलोसिटी स्पीड मीटर से मेजर कर सकते हैं. जैसे क्रिकेट बॉल जो कितना स्पीड में फेंकता है क्रिकेटर, उसका वैल्यू भी स्क्रीन में टीवी में आ जाता है, इसका मतलब मेजरेबल है. सो बट ना व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल देन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर बाय स्टॉपवॉच. कोई और तरीका नहीं है, एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता है. सो दैट्स व्हाई व्हेन फोर्स इज एक्सर्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन इट विल बी अननोन. देन वी कैन राइट F into T. T is shifted in this side, then F into T is equal to what? mv minus mu. And this F into T is called impulse.
impulse. An impulse is equal to only change of momentum. Remember, only change of momentum. A total change of momentum. Only total change of momentum. Impulse is equal to force into time. And if time is increased, then force is what? Decrease. Because wait, I'll explain it. Again I repeat, when force is exerted on a body for a measurable time, a long interval of time, then force can be calculated with the help of Newton's second law, which is equal to rate of change of momentum. But when force is exerted on a body for a very short interval of time, then it is difficult to calculate, but it is difficult to calculate accurately. For that, we have to introduce a new terms that is called impulse. And impulse is equal to only change of momentum. And what would be the unit of impulse? That is equal to change of momentum or equal to momentum. That is kg meter per second. Kg meter per second. It means impulse is equal to, impulse have same unit with what? Momentum, and impulse is equal to only change of momentum. And now remember one thing, for any moving body, for example, a ball is coming, I have to catch that ball, I have to stop that ball. It means what? बॉल जब हम कैच करेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. अभी जब मेरा हाथ में पहुंचा था, इनिशियल वेलोसिटी, एक स्पीड कांस्टेंट था, एक था बॉल का मास भी कांस्टेंट है. इसका मतलब कोई पार्टिकुलर बॉल को, पार्टिकुलर स्पीड में आने वाला बॉल को जब हम कैच करेंगे देन बॉल का मास कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, पार्टिकुलर बॉल के लिए कांस्टेंट है. तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है आपका? कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर बॉडी. तो अगर उस बॉल को मैंने एकदम सडनली कैच करते बहुत कम टाइम में, तो मेरा हाथ में बहुत जोर से चोट लगेगा. क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए बॉल को रुकाने के लिए 100 मोमेंटम चेंज होगा बॉल को स्टॉप करने में. तो अगर मैं उसको 1 सेकेंड में अगर स्टॉप करता हूँ तो फोर्स कितना न्यूटन होगा? 100 न्यूटन. इसीलिए क्रिकेटर लोग बॉल को पकड़ते वक्त थोड़ा हाथ को खींच लेते हैं. अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा? कम होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैच ड्यूरिंग द व्हाइल द कैचिंग हाथ को थोड़ा खींच लेते हैं, ये रीजन है, टू इंक्रीज द टाइम. जो बॉल को कैच करना है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट. तो आप अगर टेक्निक से अगर उसको पकड़ते हो तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगा. चोट अगर फोर्स कम होगा तो रिबाउंड भी नहीं होगा. सिमिलरली और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी ऊपर से एक हाइट से गिरा है, ठीक है, 2 बार गिरा है वो. फर्स्ट टाइम क्या है, आदमी तो सेम है, दोनों बार सेम ही आदमी गिरा है. एक हार्ड फ्लोर में गिरा है और एक बार एक सॉफ्ट फ्लोर में गिरा है. सॉफ्ट मतलब मान लेते हैं सैंड डाल दिया, तूली डाल दिया, कुछ है सॉफ्ट है. जब आदमी गिरा है एक हाइट से तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन हाइट. तो हाइट कांस्टेंट है, तो दोनों बार फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा. मास दोनों बार सेम होगा, सेम आदमी गिरा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा. मान लेते हैं कि उस आदमी का चेंज ऑफ मोमेंटम है 100. ये हम केस 1 मान लेते हैं. दूसरा केस में भी 100 ही होगा. सेम आदमी सेम हाइट से गिर रहा है. अभी यहाँ पे क्या है कि हार्ट फ्लोर में गिरा है, तो 2 सेकेंड में मान लेते हैं स्टॉप हुआ है. तो कितना न्यूटन फोर्स लगेगा उसको? 50 न्यूटन. 50 × 2 कितना होना पड़ेगा? 100. एंड दूसरा बार सॉफ्ट चीज में गिरा है तो थोड़ा धस के अंदर में टाइम बढ़ गया, मान लेते कि 10 सेकेंड में स्टॉप हुआ है, तो कितना न्यूटन फोर्स लगेगा? 10. इसीलिए कोई आदमी सॉफ्ट चीज में गिरने से उसमें चोट कम लगता है कि टाइम इम्पैक्ट बढ़ जाता है. टाइम अगर बढ़ गया तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? कम. तो रियल लाइफ में इसका बहुत सारा एग्जांपल है. स्प्रिंग वगैरह लगाते हैं बाइक में, जब गड्ढा में गिरता है तो स्प्रिंग खींच जाता है, तो खींचते टाइम बढ़ जाता है तो टूटेगा नहीं. सिमिलरली अगर हम लोग जैसे टीवी वगैरह जब खरीदते हैं तो पैकिंग करके आता है तो अभी थर्मोकोल वगैरह यूज़ होता है. टाइम को अगर कोई भी लग गया तो टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स डिक्रीज होता है, इम्पैक्ट फोर्स का इम्पैक्ट डिक्रीज होता है तो डैमेज नहीं होता है.
अंडा वगैरह अगर हम मार्केट लेके जाते हैं तो सैन का अंदर बा तो धान का जो कूड़ा होता है उसका अंदर डाल के लेके जाते हैं, कहीं पे कोलिजन होने से टाइम बढ़ जाएगा तो डैमेज नहीं होगा. सो यू विल गेट infinite number of examples regarding what impulse. So remember, when impact of force is very less, then impulse is calculated, and when impact of force is large or force is exerted for a large interval of time, then we calculate force. So force and impulse almost similar है. कम टाइम के लिए लगता है तो impulse कैलकुलेट कर देंगे, force तब कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट न्यूटन थर्ड.